Yeah, according to the thank you very much. Myself, Dr. Yurko Mahat, head professor, soil science. Now I'm going to discuss the 17th federal exercise of this is the part first semester. The object is determination of soil color by Munsell color chart. Determination of soil color by Munsell soil color chart. देखिए सोयल का जो कलर होता है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि सोयल का कलर कहीं ब्लैक है कहीं येलो है ना, कहीं रेडिश है, तो ये डिपेंड करता है द फॉर्मेशन हाउ सोइल इज फॉर्म है ना ड्यूरिंग जेनेसिस। इसमें जैसे हम बात करें एक जनरल इंट्रोडक्शन, उसके अंदर हम ये पाते हैं कि कलर इज वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस स्टैटिस्टिक of soil, and it may be probably more frequently used to describe soil. Soil color has no direct effect on plant growth. Color का plant growth से कोई relationship नहीं है, but an indirect effect is its effect on temperature and moisture. सीधा इसका इफेक्ट टेम्परेचर और मॉइस्चर। देखिए जिस का कलर ब्लैक होता है इट मीन्स देयर इज द ब्लैक कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर। अब जहाँ कलर ब्लैकिश है तो ये मानते हैं कि सोइल में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा सफिशिएंट है, और जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर होगा वहाँ का सोइल का कलर होगा ब्लैकिश। तब इसका फायदा क्या है कि जहाँ टेम्परेचर होगा ड्यूरिंग विंटर सीजन इट विल कीप वार्म कंडीशन इन द सॉइल बिकॉज ऑफ इट्स ब्लैक कलर। फर्दर ड्यूरिंग समर सीजन इट विल होल्ड मोर मॉइस्चर इन द सॉइल लेयर। तो ये टेम्परेचर और मॉइस्चर का ये इसका एक फर्क पड़ता है इन द सॉइल due to its color, वो भी जो कलर ब्लैकिश है उसका। कलर कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। अभी तक की जो सॉइल बनती है डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस उसकी वजह से इसका सारा कलर डेवलप होता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस अंडर व्हिच a soil was developed or its parent material in many instances the productivity capacity of soil can be judged from its color. हम कह सकते हैं इसका कलर ब्लैकिश है, हम कहेंगे सोइल ये प्रोडक्टिव है ना, इट इज मोर फर्टाइल एंड मोर प्रोडक्टिव। तो एक indirect judgment can be taken by seeing the color of the soil. But practically all colors occur in the soil. It includes white, red, brown, gray, yellow, black, even bluish and grayish tints also occur. Predominantly, soil colors are not pure, but mixtures such as gray, brown, and rust. Don't have a rust. Pure blue and green are not known to exist in soils. Pure blue and green नहीं मिलता है। Frequently 2 or 3 colors in patches जब पाए जाते हैं हम कहते हैं mottling, है ना, हम कहते हैं mottling, यानी different colors are combined in one form, it will produce the mottling property of the soil, mottling. Now, soil component imparting colors. अब देखिए, colloidal material has greatest impact on soil color. Clay content, है ना? Final fraction of the soil is colloidal in nature. It has more pronounced effect on the soil color.
The outstanding are iron hydroxides and humus. जो लोहा होता है फिर जो होते हैं हाइड्रोक्साइड्स, उसका भी कलर से बहुत फर्क पड़ता है and when they are combined with humus they will reflect the soil color. Humus is black or brown in color. Iron oxides are red, rust brown, yellow depending upon the degree of hydration. येलो कलर है ये आपका बताएगा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन. Reduced iron is blue green. Quartz is white. Limestones are white, gray, or sometimes olive green. Feldspar have different colors with red predominating. Clays are gray, white, or red. The type and amount of iron coatings largely determine the colors of the clay. कितना अमाउंट है आयरन कोटिंग का, है ना, वो उसका जजमेंट करती है सोयल का कलर. क्या सिग्निफिकेंस है सोयल कलर का, क्या इंपॉर्टेंस है? कलर्स आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ सोयल कैरेक्टरिस्टिक्स. दे सर्व वेल इन द स्टडी ऑफ जेनेसिस of soil and in arriving at conclusions concerning their best use and management. Their best use and management. Soil color can be a guide to the climatic soil group, to the current material, or to the physiographic location. To the physiographic location. Soil in the humid, temperate, and cold zones are dominated by grayish in color. Grayish in color. Red and yellow soils are mostly found in tropics and subtropics. Although some derived from limestone can be red even in warm temperate regions. Depression खड्डे होते हैं. Depression soils are darker than the adjacent upland soils. जहाँ पर डिप्रेशन होगा, खड्डा होगा, वहां पर सोयल कलर होगा डार्क. इन कंपेरिजन टू द दूसरी एडजॉइनिंग सोयल है, अगर वो फ्लैट है तो उसका अलग कलर होगा, फिर डिप्रेशन में उसका अलग कलर होगा. जो डिप्रेशन है उसका कलर होगा डार्कर. क्यों होगा? बिकॉज higher amount, the higher content of organic matter is accumulated in the depression condition. Soils derived from basic rocks are generally darker than soils derived from acid rocks. यानी कि जैसे आपका बेसिक रॉक्स है ना, तो उनका कलर होगा डार्क इन कंपेरिजन टू द एसिडिक रॉक्स. Because this is due to the stability of calcium humus, and the depression and consequent easy removal of hydrogen humus. But the method, a method that is favored by many soil scientists, is the direct comparison of soil with chips of 100 colors. बुकलेट टाइप है, उसमें आज की तारीख में वर्ल्ड में जितनी भी सोइल्स हैं उनका कलर उसमें दिया होता है और इनका अलग रेंज होता है. जैसे 10 YR, 2.5 YR, है ना, 7.5 YR, R, Y, and YR and so on. तो ये कलर के साथ चाहिए. तो इसमें क्या है कि वो चिप्स होती है, वो कलर फ्रिक्वेंटली द मुसल सिस्टम इज यूज्ड, है ना. ये बताया था राइस बिकॉज इन 1941 एंड Pennington and Nicholson in 1984 and also the Knox in 1952. So three basic
फैक्टर्स होते हैं इसमें which are the components of color. जिसमें आपको आता है ह्यू, HEU, ह्यू, देन वैल्यू, देन क्रोमा। ये तीन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं इसमें कलर के, ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा। अब इसमें क्या है कि ये आपका बताएगा मुख्य कलर का चार्ट के बारे में। ह्यू क्या होता है? व्हाट इज ह्यू? इट रेफर्स द डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर, हाँ, और क्वालिटी विच डिस्टिंग्विशेस रेड फ्रॉम येलो, यानी कि ये बताएगा आपका डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर ह्यू, है ना। देन वैल्यू, ये क्या है? इट इज ब्रिलियंस और लाइटनेस ऑफ द कलर। क्रोमा, क्रोमा क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ डिपार्चर फ्रॉम न्यूट्रल ग्रे और व्हाइट, और यू कैन से द प्योरिटी ऑफ द कलर, प्योरिटी ऑफ द कलर। व्यू क्या है? डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर। वैल्यू है आपका लाइटनेस ऑफ कलर, एंड क्रोमा है आपका प्योरिटी ऑफ द कलर। ये तीन चीजें हैं, ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा। These three variables have been combined into a book, है ना। जो किताब है आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये आपका, ये आपकी बुक है, तो यहाँ पर आपका चिप्स होंगी, है ना। जैसे मान लो 10 है तो चिप्स होती है ना, अलग कलर की, और इन चिप्स का कलर का नेम इसके ऊपर होगा। जैसे आपको एक चिप आ गया तो नेक्स्ट चिप इसमें नीचे आएगी, बीच में इसका होल होगा, सर्कुलर, है ना, है ना। इस तरह से पूरा आपका लीड भरी होती है चिप से, हर दो चिप के बाद में एक होल होता है, फिर उसका कलर का नेम यहाँ साइड में लिखा होता है, कलर नेम। अब जो है इसके अंदर हम जो छोड़ लेते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। एक तो हम करते हैं ड्राई सॉइल का टेस्ट करते हैं, फिर कुछ उसका नम करते हैं, और फिर है थोड़ा उसका वेट करते हैं। तो ड्राई, मॉइस्ट एंड वेट, तीन कंडीशन होती है सॉइल की, है ना। तो पहले हम ड्राई सॉइल लिया, है ना, तो ड्राई सॉइल को लेकर के हाथ में लिया आपने, तो रब किया, और उसको जो आपका जो मुझे कलर चार्ट है, जो चिप है, दो चिप के बीच में उसमें जगह होती है सबर, तो हम उसको मिलाएंगे, उसको सॉइल सैंपल को, कि ये कौन सी चिप से कलर का मैच कर रहा है ना, किससे मैच हो रहा है इसका। तो जैसे एग्जाम्पल हमने लिया 10 YR, 10 YR, इस एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल है कलर ऑफ सॉइल होराइजन है 10 YR 6/3, 10 YR 6/3। अब 10 YR क्या है? 10 YR क्या है? चिप नंबर है ये, चिप नंबर 10। YR मतलब येलो रेड, इसका मतलब है 10 YR। 10 YR क्या है? चिप नंबर है 10, और Y एंड R क्या है? Y फॉर येलो एंड R फॉर रेड। ये आपका क्यू हो गया। देन वैल्यू, मैंने कहा 10 YR 6/3, तो 6 इसकी होगी वैल्यू, जो ओब्लिक 3 है वो आपका हो गया क्रोमा। तो इसमें तीन चीजें वेरिएबल है, ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा। हम क्या करते हैं कि ड्राई सॉइल का हम पहले इसमें कलर मैच करते हैं 10 YR के अंदर, फिर उसको नम करते हैं, मोस्ट करते हैं, फिर मैच करते हैं, फिर उसको कुछ और मोस्ट डालते हैं, हम कहते हैं गीला, वेट, तो वो उसको हम मैच करते हैं। खास बात यह है कि जैसे ही आपका ड्राई से मोस्ट और मोस्ट वेट आता है, तो जो आपका जो कलर जो चिप है वो ऊपर से नीचे आएगी। अगर सेम लिप के अंदर है तो ड्राई सॉइल का कलर जो है वो ऊपर चिप में आएगा, जैसे मोस्ट होगा, डार्क होगा, मोस्ट होती तो नीचे आएगा, और वेट है तो और नीचे आएगा, या उसमें रह सकता है। मोस्ट एंड वेट कैन रिमेन इन द सेम, बट ड्राई कलर, ड्राई कलर विल नॉट रिमेन, इट विल बी अबव, जो ऊपरी चिप है वो उसमें रहेगा। तो ये संवाद की जजमेंट है, इसको देखने करने का, है ना। और ये जो है कलर जब लेते हैं, बात करते हैं, तो ये कलर कोई भी साइंटिस्ट अगर प्रोफाइल स्टडी कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई जिले की है, या स्टेट की है,
या कोई पंचायत समिति है ना, तो उसके अंदर जो है वो अलग अलग मतलब जब कुछ भी प्रोफाइल खोजेगा, तो प्रोफाइल का तरीका ये होता है कि करीब 6 फीट गहरी होनी चाहिए प्रोफाइल, यानी छोटी भी साउथ ईस्ट फिशिंग है ना, आपको ईस्ट में है उसमें आप फेस होना चाहिए, और उसमें से जो होराइजन दिख रहे हैं है ना, उन होराइजन का जो है कलर यू कैन मैच विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग सॉइल मोइस्चर कलर चार्ट. So this is all about your soil moisture color chart. Thank you very much. Jagari? And नमस्कार. वो आज बच्चे